اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ طریقے کربلا پر ہیں، طریقے یا حسین پر ہیں۔ نجف سے جو کربلا تک پیدل سفر طے کیا جاتا ہے، جس کو عمومی طور پر مشی کہا جاتا ہے، اور یہ اجتماع دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے جس کو مشی اربعینی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تمام قدم جو بڑھ رہے ہیں یہ اس وقت کربلا کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین محترم، کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز مکے کی زمین فخر کرنے لگی، مکے کی زمین اپنے فضائل بیان کرنے لگی کہ میں وہ زمین ہوں کہ جس پر خانہ کعبہ ہے، میں وہ زمین ہوں کہ جس کی طرف لوگ جھکتے ہیں، میں وہ زمین ہوں کہ جس پر لاکھوں زائرین جو ہے ہر سال آ کر حج ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین کو، یعنی مکے کی زمین کو وحی کی کہ اگر کربلا کی زمین نہ ہوتی تو خانہ کعبہ قبلہ یعنی مکے کی زمین بھی نہ ہوتی، اور کربلا کے اندر جو مدفون ہے اگر وہ نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ گرمی کی شدت ہے، ہم آپ کو جو ہے لائیو مناظر دکھا رہے ہیں، آپ جو ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر۔ ہادی ٹی وی آپ کو لمحہ و لمحہ آگاہ کیے ہوئے ہے، صبح بھی اور شام بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ بھی اپنے کمنٹس میں نام لکھتے رہیں، ہم آپ کو دعاؤں میں شامل کرتے رہیں گے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے مظلوم بیٹے یعنی کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو دنیا اور آخرت کی حاجتیں میرے ذمے ہیں۔ میرے ذمے سے مراد کہ اس کی تمام حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے صعوبتیں اٹھائے گا۔ ناظرین، یہ سفر جو ہے وہ دشوار ہے، یہاں پر کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہوتی، رہائش کی کوئی تنگی نہیں ہوتی، لیکن ایک انسان ہے، انسانی بدن ہے، فطرت ہے کہ وہ تھوڑی اپنے ماحول سے ہٹ کر کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ مسلسل 80 کلومیٹر چلتا ہے تو اس کے پیروں میں چھالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بیٹے کی زیارت میں صعوبتیں برداشت کرے گا تو میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ہم سایہ ہوگا، جنت میں وہ رسول خدا کا ہمسایہ ہوگا۔ جو مقام رسول خدا کا ہوگا جنت میں، وہی مقام جو ہے وہ اس زائر کا ہوگا۔ نہ جانے کس زائر کا کون سا قدم جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے، نہ جانے کون سا قدم جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں جو ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جو روایت نقل ہوئی کہ دنیا اور آخرت کی مشکلات اس کی حل ہو جائیں گی، وہ یقیناً ہوتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں، یقیناً ہم ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں۔ مسلسل ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم یہ سفر عشق آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جو بھی عشق کے سفر میں اس وقت گرمی کی شدت ہے، پسینے سے تر بتر ہیں لوگ۔ پسینے کے بارے میں ایک روایت آپ کے عرض کروں کہ جو زائر کا پسینہ نکلتا ہے اس کے ایک قطرے سے پروردگار عالم 70,000 ملائکہ خلق کرتا ہے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یقیناً یہ زائرین حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچیں گے، وہاں 2 رکعت نماز بھی حاجت جو ہے وہ پڑھیں گے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے، اور حرم امام حسین علیہ السلام میں زیارت پڑھنے کی فضیلت اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک رکعت کے عوض 70,000 حج، 70,000 عمرے اور 1000 شہداء کو جو ہے وہ آزاد، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا اس کو پروردگار عالم جو ہے وہ ثواب عطا کرے گا۔ ہمارے ساتھ مولانا سبط حسن صاحب جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔ ناظرین پروگرام لبیک یا حسین میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ خوبصورت مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ وہ لمحات ہیں کہ جب انسان اس کیفیت کو دیکھتا ہے اور اس عشق کے سفر کو دیکھتا ہے تو یقیناً انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس سفر میں شامل ہو جائے۔ یقیناً یہ روحانی منظر آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اس جوش جذبے کو سلامت رکھے اور یہ خوبصورت سلسلہ اسی طرح سے بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو۔ یقیناً یہ محبت، یہ جوش، یہ جذبے یقیناً حسین سے ملتے ہیں، جس حسین کی محبت میں یہ جا رہے ہیں اور جس سرزمین کی طرف یہ جا رہے ہیں، یہ سرزمین وہ سرزمین ہے یقیناً
جس کے بارے میں یہ روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس ہستی کی طرف آپ قدم بقدم چل کے جا رہے ہیں وہ ہستی وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے کوئی ایسی خصوصیات عطا فرمائیں کہ جو خصوصیت کسی دوسری ہستی میں نظر نہیں آتی. یہ وہ خصوصیات جو صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، وہ خصوصیات کہ جو صرف امام کے ساتھ خاص ہیں. ان میں سے 3 خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی، حتیٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا نہیں کی. اور ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین. اللہ تبارک و تعالی نے امامت کے سلسلے کو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھا. امامت اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین کی صلب میں رکھی. یقیناً امام حسن کے بعد امام حسین اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے یہ امامت کا سلسلہ جاری و ساری رہا. یقیناً یہ عظمت اللہ تبارک و تعالی نے صرف حسین ابن علی کو عطا کی. اور دوسری عظمت اللہ نے جو امام حسین کو عطا کی کہ الشفاء فی تربتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاک کے اندر شفا رکھ دی جس خاک میں حسین ابن علی کا خون شامل ہو گیا. یہ ایسی عظمت ہے. یقیناً خاک اور مٹی کھانا حرام ہے، جہاں کی بھی ہو، مکہ، مدینہ یا کسی بھی مقدس شہر میں چلے جائیں اس کی مٹی کھانا حرام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس خاک کے اندر شفا کو رکھ دیا جو خاک کربلا ہے. اس خاک کربلا کو اگر انسان اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے کھانا چاہے تو انسان اس خاک کو کھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی جسمانی بیماری کو دور کر دیتا ہے. اور تیسری فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص کر دی، اور یہ عظمت صرف امام حسین کو عطا کی، اجابت الدعاء تحت قبتہ. اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی اجابت کو آپ کے قبہ اور آپ کے روضہ کے نیچے رکھا. جو شخص بھی دعا مانگتا ہے، اور یقیناً یہاں آپ تڑپ کے ساتھ زائرین جا رہے ہیں، تو میں آپ تمام زائرین سے یہ کہوں گا کہ آپ جب روضہ امام حسین اور گنبد امام حسین کے تلے موجود ہوں اس وقت آپ جو دعا بھی مانگیں گے وہ قبول ہوگی. حتیٰ روایات میں ہے کہ انسان جب دست دعا بلند کرتا ہے وہ دعا کہ جو کہیں قابل قبول نہیں، جو انسان کی دعا کہیں قبول نہیں ہوتی، اگر انسان مکہ مدینہ میں چلا جائے اور خانہ خدا میں جا کر دعا مانگے اللہ اس کی وہ دعا کو قبول کرتا ہے. روضہ نبی پر چلا جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور روایات یہ کہتی ہیں جو دعا آپ کی خانہ کعبہ میں بھی پوری نہیں ہوئی، جو دعا آپ کی روضہ رسول پر بھی پوری نہیں ہوئی، فرمایا اجابت الدعاء تحت قبتی. آئیے روضہ امام حسین اور گنبد امام حسین کے تلے دست دعا بلند کیجئے، آپ مانگتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی حسین ابن علی کے صدقے میں وہ دعائیں قبول کرتا چلا جائے گا. اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا. یقیناً یہ دعاؤں کا سلسلہ یقیناً ہمارے ناظرین سے بھی جڑا ہے. وقتاً فوقتاً وہ ہم سے دعا کی التماس کرتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو بھی ہادی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے یہ روحانی لمحات بھی دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. اور جو زائرین یہاں تشریف فرما ہیں جب وہ دست دعا بلند کریں گے، ہمارے ان زائرین کو بھی چاہیے جو یہاں پر آئے ہیں، جو نہیں آ سکے ان کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھیں. جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی قدم بقدم چلتے ہوئے ہر قدم ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور یہ پیدل سفر جو ہے وہ ان کے ساتھ اور ان کی یاد میں رکھا جائے، کیونکہ جب انسان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب انسان دست دعا بلند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے پھر اسے کبھی بھی اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی انسان سوچتا ہے کہ اگر میں دعا کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں اپنے لیے کروں، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے دعا کروں. لیکن جو باقی دوسرے ہوتے ہیں شاید ہم انہیں بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہم انہیں کیسے دعاؤں میں یاد رکھیں. نہیں، جب بھی دست دعا بلند کریں دوسروں کو دعا میں شامل رکھیں. آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے پھر آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دلوں
کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ آپ کے دل کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے دل کی حاجت کو قبول کرے گا۔ آپ سوئے کربلا جا رہے ہیں، رستے میں جہاں جا رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں، وہاں اپنے دلوں میں دعاؤں کو لیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ جب جائیں گے، اور میں ان ناظرین کے لیے اور یہاں پر جو موجود ہیں زائرین ان کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے کربلا کی زیارت کا تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو خاص طور پر پہلی دفعہ یہاں زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی آپ کربلا کے اندر پہنچے اور زیارت کرنے کا ارادہ ہو، آپ غسل زیارت کریں اور اس کے بعد آپ روضہ امام حسین کی طرف جائیں، اور جب آپ گنبد امام حسین پر آپ کی نگاہ پہلی دفعہ پڑتی ہے تو جو انسان بھی پہلی دعائیں مانگے گا، روایت کہتی ہے اللہ اس کی پہلی 3 دعاؤں کو قبول کرتا ہے گنبد کو دیکھنے کے ساتھ ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ پہلی دفعہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے اور پہلی دفعہ اس کی نگاہیں گنبد حسین پر پڑی ہیں، اے انسان مانگ جو مانگنا چاہتا ہے اللہ تجھے عطا کرے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قدم بقدم چلتے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور یہ خوبصورت مشی کے لمحات، یہ پیدل سفر کے لمحات، یہ عشق کا سفر ہم آپ کے ساتھ گزاریں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ شامل رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ برادر محترم ذیشان حیدر صاحب ہیں، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے آپ روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے کشید کیے گئے وہ نکات کے جن میں سبق پوشیدہ ہے۔ یقیناً زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رعایت کریں گے۔ ہیچ ہم سمجھیں دو عالم کو تو حیرت کیا ہے، ہیچ ہم سمجھیں دو عالم کو تو حیرت کیا ہے، رتبے عشاق کے اس سے بھی سوا ہوتے ہیں۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صرف زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رغبت دلاتے ہی نہیں نظر آئے، بلکہ اگر آپ ان روایات کا دقت سے معائنہ کریں، ان کو ملاحظہ کرنے کے بعد آپ خود الفاظ کے ذریعے یہ جانیں گے کہ ان روایات میں خود مشی کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ گویا امام پسند کرتے ہیں کہ اس زیارت کو پیدل چل کر انجام دو، فقط زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب حاصل کرنا مقصود نہیں، بلکہ مشی کے ذریعے اس کی اہمیت بتلانا بھی مقصود ہے کہ دیکھو سواری پر جب انسان کسی مقام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، کسی منزل کی طرف جاتا ہے، تو اس مقام کی اتنی اہمیت واضح نہیں ہوتی کہ جتنا اس کو چل کر اگر انسان طے کرے اور اس سفر کو تمام کرنے کے بعد کسی منزل پر پہنچے تو یقیناً یہ اس کی زیادہ اہمیت کے ہونے پر دلیل بنتی ہے۔ یقیناً امام علیہ السلام کی حدیث آپ بارہا سماعت فرما چکے ہیں۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین ماشیا کتب اللہ لہ الف حسنہ، جو بھی چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے زحمت دیتے ہوئے تشریف لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم کے بدلے اسے 1000 نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ وعفى اللہ عنہ الف سیئہ، نہ صرف 1000 نیکیاں اسے اس قدم کے بدلے عنایت کی جائیں گی بلکہ 1000 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ورفع له الف درجہ، اس انسان کا ایک قدم اٹھنے سے پہلے جس جگہ وہ اللہ کے یہاں مکتوب ہوگا، موجود ہوگا، اس قدم کے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے 1000 درجات بلند فرما دے گا۔ یقیناً میں کہوں گا کہ اس کے ایک قدم کا ثواب گنتے گنتے، شمار کرتے کرتے اس کا دوسرا قدم اٹھ جائے گا، اور یقیناً اس کے دوسرے قدم پر پھر ایک مرتبہ یہ تینوں اجر اللہ کی طرف سے اسے عنایت کر دیے جائیں گے۔ یقیناً یہاں پر خوبصورت ماحول ہے، اور یہاں پر لاکھوں بلکہ کروڑوں عشاق امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنے قدموں کو زحمت میں ڈالتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں پر کروڑوں قدم ہیں کہ جن کے بدلے اللہ تعالیٰ مسلسل ان پر اپنی فراوان نعمتیں اور مغفرتیں اور بخششیں عنایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ یقیناً امام معصوم علیہ السلام کا وہ فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جس سے یہ مشی بھی معرفت بھری بنے گی، اور انشاءاللہ اگر
اس سال کے بعد کوئی یہاں پر زیارت کے لیے تشریف لائے گا تو اس کو بھی یہ حدیث کام آئے گی۔ ایک مرتبہ معصوم علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے ایک صحابی امام کے گھر میں آنے لگا۔ یقیناً مشکلات کا دور تھا، غربت کا دورہ تھا، تو ہر کسی کے پاس سواری نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ صحابی جب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پاؤں پہ آبلے پڑ چکے تھے، شاید پاؤں سے خون بھی بہہ رہا ہو۔ امام علیہ السلام نے حالت دیکھی تو پوچھا میری زیارت کے لیے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا میں کسی دنیاوی مال و متاع کی غرض سے تو آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا، یہ ساری زحمت میں نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے بدلے میں آپ کچھ عطا کریں گے، بلکہ یہ زیارت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے۔ اس محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کو دیکھنے، آپ سے ملنے اور آپ کی زیارت کرنے چلا آؤں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک عجیب سوال کیا کہ جو آج ہمارے بڑے کام آئے گا۔ عرض کیا کہ مولا اتنا تو بتائیے، یہ اتنی زحمت جو میں نے اٹھائی، آپ سے ملنے کا قصد جو میں نے کیا اور آپ کی زیارت سے میں مشرف ہوا، ذرا اجر تو بتائیے کہ خدا بدلے میں مجھے کیا اجر عنایت فرمائے گا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ حل الدین الا الحب، اگر دین سے محبت نکال دے تو پیچھے بچتا کیا ہے۔ یقیناً امام علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے کہ اگر دین سے محبت اہل بیت نکال دی جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے۔ تو میں آج اس فرمان کو یہاں پر تطبیق کرتے ہوئے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہی جملہ کہوں گا کہ اگر دین سے محبت امام حسین نکال دی جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے۔ یقیناً انسان نماز سے تو محبت کرے گا، روزے سے تو محبت کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کو بچانے والے سے محبت نہ کرے، روزے کو بچانے والے سے محبت نہ کرے، کہ جس کی وجہ سے آج آذانیں مسجدوں میں گونج رہی ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج لوگ نماز جماعت برپا کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے لوگ حج و عمرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام زندہ ہے، اس کو بھلا دیا جائے اور اس کی محبت کا حق ادا نہ کیا جائے۔ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کا مقام بلند ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ کیسے ممکن ہے کہ نانا اپنے نواسے سے پہچانا جائے؟ نواسا تو نانا سے پہچانا جاتا ہے۔ حدیث کا پہلا حصہ یقیناً واضح ہے، لیکن یہ دوسرا حصہ غور اور فکر کے بغیر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اور اگر علماء کی تفاسیر پڑھی جائیں تو یہی ملتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ پیدائش سے لے کر 61 سنہ ہجری تک حسین محمد مصطفیٰ سے پہچانے جاتے رہے کہ اس نانا کے نواسے کہ جس کے گھر پر وحی نازل ہوتی رہی، لیکن 61 سنہ ہجری کے بعد تا قیام قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور اسلام، یہ سب امام حسین کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ جو کربلا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ اور یقیناً اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی قابل توجہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اتنا جو دور سے چل کے آیا ہے ہماری زیارت کے واسطے اور اپنے پاؤں کو زخمی کر بیٹھا ہے تو سن، لو احبنا حجر لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ، اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا جب روز قیامت ہوگا اس دن ہر کسی کو اس کے اپنے امام کے ساتھ، اس کے پیر، اس کے مرشد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوئی حق کا ہوا حق کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کوئی اہل باطل ہوا باطل کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھ جو ہم معصومین سے محبت کا دم بھرتا ہوگا، ہماری محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوا، تو یقیناً آخرت کے روز، قیامت کے روز ہمارے سائے تلے اس کو اٹھایا جائے گا۔ یقیناً آج جو امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں مشقت برداشت کر رہے ہیں کہ یہاں سورج جو آگ برسا رہا ہے، لیکن یہ زوار کی حرارت کے سامنے، ان کے دلوں میں موجود جوش اور جذبے کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سورج اپنی شکست کا اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں نے جتنا آزمائش میں ڈالا ہے، جتنا امتحان لیا ہے، لیکن ان زوار کے، ان عشاق کے قافلوں میں سے کسی ایک کو بھی میں زیر نہیں کر سکا، اور ان کے عزم و استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ قدم مسلسل 5 دن اب بڑھتے چلے جائیں گے، یہ رش اب مزید بڑھتا نظر آئے گا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنی عقیدتوں کو اور اپنے جذبات کو اس طرح سے ظاہر کرتے رہیں گے۔
जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इश्क के काफ़िले देख रहे हैं कि किस तरह मुसलसल जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश्शुहदा से अक़ीदत का इजहार करने के लिए ये कदम बढ़े चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको ये मनाज़िर लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 144 नंबर पोल पर और आपकी नियाबत में हम मशी कर रहे हैं। हर कदम हमारा आपकी नियाबत में उठ रहा है। आप हमें अपनी दुआओं का कह सकते हैं। लाइव कॉल्स भी हम प्रोग्राम के आखिर में लेंगे। कमेंट्स में आप अपने नाम लिख सकते हैं। ये ज़ायरीन जो कदम उठाए चले जा रहे हैं, हर कदम के बदले इनके लिए नेकियां लिखी जा रही हैं। हर कदम के बदले इनकी बुराइयां मिटाई जा रही हैं। 1 लाख नेकियां लिखी जाती हैं, 1 लाख बुराइयां मिटाई जाती हैं। जब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ज़ायरीन पहुँचेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत है कि जब ये ज़ायर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पहुँच जाता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस ज़ायर के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, क्या लुत्फ़ व करम है परवरदिगार का कि जो हुसैन 72 रोज़ तक जो है वो 72 शुहदा के साथ करबला में 3 रोज़ का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, आज उसके नाम पर लोग लाखों करोड़ों लुटाने के लिए तैयार हैं। इस नफ्सा नफसी के आलम में क्या अजीब मंज़र नज़र आ रहा है। दुनिया का एक अजीम इज्तिमा है जहाँ पर लोग लुटाने को तैयार होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कहीं कोई इज्तिमा होता है, कहीं कोई मेला लगता है, कहीं कोई फेस्टिवल होता है तो लोग वहाँ पर कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उशाक़ हुसैन का अजीब ही मंज़र नज़र आ रहा है कि हर कोई कह रहा है कि हमसे ले लो, हमसे ले लो। किसी के पास कुछ नहीं है, वो टिशू पेपर दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई ज़ायरीन का मसाज कर रहा है, कोई ज़ायरीन के साथ जो गाड़ियाँ होती हैं बच्चों की वो बना रहा है, कोई जूतियाँ सी रहा है। यहाँ पे उलमा भी जो है वो ज़ायरीन के जूते पॉलिश करते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, अजीब इश्क का मंज़र है, अजीब मवद्दत अदा हो रही है, अजीब अजर रिसालत। जिस तरह मौलाना ज़ीशान ने कहा था कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो यकीनन ये हुसैन से मवद्दत, ये हुसैन से मोहब्बत अजर रिसालत है। ये हुसैन से मोहब्बत ही रसूल खुदा से मोहब्बत है। रसूल खुदा से मोहब्बत यानी खुदा से मोहब्बत। ये कुर्ब इलाही हासिल करने का एक ज़रिया है। ये कुर्ब इलाही हासिल करते हुए लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़े चले जा रहे हैं। हर कदम यहाँ पर थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है इनको। इनके पसीने तर बतर हैं, लेकिन हर पसीने के एवज़ 70,000 मलाइका जो है वो खल्क़ किए जा रहे हैं, जो इनके गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जिस तरह अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो शाख के काफ़िले बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इस वक्त पोल नंबर 147 पर मौजूद हैं, आपकी नियाबत में मशी करते हुए चले जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मौलाना सिब्त हसन साहब साथ हैं हमारे, वो आपको मज़ीद आगाह करेंगे। हाँ, यकीनन ये पैदल सफ़र का खूबसूरत सफ़र जारी व सारी है और इश्क और मोहब्बत के ये काफ़िले रवां दवां हैं क़िबला उशाक़ुल हुसैन करबला की जानिब, जहाँ इंसान बड़ी ही मोहब्बत और जज्बे जोश के साथ इस सफ़र को जारी रखे हुए है, गर्मी की परवाह किए बग़ैर इस सफ़र को जारी रखे हुए। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इनके इस जोश जज्बे को सलामत रखे और यकीनन इसका अज्र जो इसको इनको दिया जाएगा, जो बारहा मैं आपकी खिदमत में रिवायात अर्ज़ कर चुका हूँ। यकीनन ये वो अज्र और वो सवाब है कि एक आम इंसान इसको दर्क नहीं कर सकता। रिवायात में जो इसका अज्र बयान किया गया है, और यकीनन क्यों न हो अज्र, क्योंकि हम चल कर जा रहे हैं उस सरज़मीन मुक़द्दस करबला मुअल्ला की तरफ, जिस ज़मीन को चुना गया और जिस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मत अता की, वो अज़मत के जो इस कायनात में किसी और ज़मीन को नज़र नहीं आती। और यकीनन करबला मुअल्ला और इसके अलावा जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब इंसान ज़ियारत को जाता है तो ज़ियारत मुख्तलिफ़ मुनासिबत से मुख्तलिफ़ ज़ियारतें जो मुस्तहब करार दी गई हैं, उन ज़ियारत में से रजब की ज़ियारत है, शाबान नीमा शाबान की ज़ियारत है, और रमज़ानुल मुबारक की निसफ़े रमज़ानुल मुबारक शब-ए क़द्र की हैं। और इसके अलावा जो है माह मुहर्रमुल हराम 10 मुहर्रम आशूरा के दिन की ज़ियारत है। और इसके अलावा जो है वो शब जुमा, हर शब जुमा ज़ियारत होती है और मोमिनीन जाते भी हैं। बहुत से लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें ये सआदत मिलती है कि जो है वो हर जुमा की शब में वो ज़ियारत करते हैं और इस ज़ियारत के साथ साथ जो है वो उसका सवाब भी हासिल करते हैं। यकीनन जिस तरह से ये करबला
اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ لشکر آپ کے ہمراہ اسی سرزمین مقدس پر موجود تھا. وہ سرزمین جسے کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے، اور آپ کے وہ با وفا اصحاب کہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، جو آپ کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، تن من دھن کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار تھے. اور یقیناً اگرچہ 72 کا وہ جو قافلہ تھا وہ اس طرح کے جو ہے وہ فداکار اصحاب تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور میں یہ فرمایا کہ اے میرے با وفا صحابیوں، میں تم سے راضی ہوں، اگر کوئی مجھے چھوڑ کے جانا چاہے تو وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے. امام حسین نے کہا میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اور جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلا جائے. لیکن خدا کی قسم وہ کیسے با وفا اصحاب تھے کہ جب مولا نے یہ اعلان کیا کہ جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن اس وقت پکار کر ہر ایک صحابی اٹھا. حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ اور مختلف جو ہے وہ اطراف سے آئے ہوئے مولا کے وہ جانثار جو اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں. یقیناً جو قربانی پیش کی گئی اور انہوں نے پیش کی باری باری، ہر صحابی کھڑا ہو کر یہ کہتا تھا اے مولا یہ تو ایک زندگی ہے جو ہم آپ پر قربان کر رہے ہیں، اگر ہمیں ہزاریں جانیں بھی ملیں، ہماری 1000 جانیں بھی ہوں، ہم ہر جان کو آپ پر قربان کر دیں. اور پھر اس وقت مسلم ابن اوسجہ اٹھا اور اٹھ کر یہ پیغام دیا اے مولا اگر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر جلا دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے اور اسی طرح سے پھر جلایا جائے، اور مجھے 1000 دفعہ موت بھی آئے، میں ہر دفعہ آپ پر قربان کروں گا، لیکن آپ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. ہاں مولا نے جب یہ ان کے حوصلوں کو دیکھا، کہیں سے حبیب اٹھ رہا ہے، کہیں سے مسلم ابن اوسجہ اٹھ رہا ہے، کہیں سے زہیر ابن قین اٹھ رہا ہے، جب محبت جوش اور جذبوں کو دیکھا تو اس وقت، اور خدا کی قسم یہی تو وجہ ہے پھر امام حسین یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ خدا کی قسم جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں، نہ میرے بابا علی کو ملے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے. ایسے با وفا اصحاب تھے جو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہاں وہ قربانیاں بھی ملتی ہیں جن کا نام دحیہ جو ہے وہ قلبی ملتا ہے، یا وہاب قلبی کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو نصرانی تھا جب حسین سے ملاقات کی تو اسلام قبول کر لیا، اور وہ جن کی شادی کو ابھی 20 سے 25 دن گزرے تھے، نئی شادی شدہ زندگی ہے، زوجہ بھی ساتھ ہے، اس کی والدہ بھی ساتھ ہے، جب حسین سے ملاقات کرتے ہیں تو حسین کے ہو جاتے ہیں کہ ہم کلمہ اسلام پڑھائیے. کلمہ اسلام کو جب پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت آ جاتا ہے وہ 25 یا 20 دن کی نئی شادی شدہ زندگی میں اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آگے مولا کی خدمت میں مولا مجھے اجازت دے دیجئے میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. جب یہ جملہ فرمایا تو یقیناً اس کی بیوی بھی تھی، اس کی بیٹی بھی موجود تھی، لیکن بیوی چونکہ نئی شادی شدہ تھی. کہا وہاب کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں. کہا قربان ہونے جا رہے ہو تو میرا کیا بنے گا؟ میرا تو نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، میرا تو کوئی وارث نہیں ہے تمہارے علاوہ، تم مجھے چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤں گی؟ خدا کی قسم وہاب نے کہا حسین کو بھی سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں اگر حسین کے پاس نہیں جاؤں گا کل سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. جب یہ جملہ کہا نا اس وقت وہاب کی بیوی بھیجنے پر راضی ہو گئی، لیکن کہا میں ایک وعدہ چاہتی ہوں. کہا بولو کیا وعدہ چاہتی ہو؟ کہا کل جب تم شہید ہو جاؤ گی اور جنت میں چلے جاؤ گے، اے وہاب مجھ سے وعدہ کرو جنت میں بھی میرے علاوہ تمہاری کوئی زوجہ نہیں ہوگی، جنت میں بھی میں تمہاری زوجہ قرار پاؤں گی. یہ جب وعدہ لیا کہا ایسے نہیں، مجھے حسین سے وعدہ چاہیے. مولا کی خدمت میں لائے اور وہاب نے سوال کیا کہ اگر میں جنت میں نہ پہنچ سکا، اگر میں جہنم میں چلا گیا تو کیا تم میرے رفیق بن جاؤ گی؟ اس وقت مسکرا کے کہا فدایان حسین پر جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گئے. جو حسین پر قربان ہو جائے اس کے لیے جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا جاتا ہے. بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. خوبصورت مناظر آپ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے
حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ لبیک یا حسین کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ہادی ٹی وی آپ کے سامنے، آپ کے گھروں میں، آپ کے ہاتھوں میں اسکرین پر پیش کر رہا ہے آپ سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور کے وہ مناظر کہ جہاں پر حاضر ہونا ہر ایک اپنا شرف سمجھتا ہے اور جس اجر کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک تڑپ رہا ہے۔ آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سورج کی تپش ابھی تک موجود ہے اور گرمی اور حرارت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود زائرین ہیں کہ مسلسل سفر کیے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دن بھر تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کیا، لیکن اب چونکہ موسم نسبتاً بہتر ہو رہا ہے اور مغرب کی نماز کے قریب انہوں نے یہ سفر دوبارہ شروع کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمیں یہ تعداد اس وقت اس شاہراہ پر نظر آتی ہے کہ جب نماز مغرب کے بعد لوگ زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر رات بھر یہ سفر جاری رہتا ہے۔ اور یہ چونکہ دن قریب آ رہے ہیں 20 سفر المظفر کے، تو بہت سے لوگ اب اس سفر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم تعداد اب اس شاہراہ پر موجود ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ آخری 3 دن میں یہ مشی کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ 19 اور 20 کے بالکل قریب وہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرم مطہر ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھا جائے تو موجود ہیں۔ تقریباً 8 سفر سے تو مشی شروع ہو چکی ہے جی بالکل، لیکن اس میں ایرانی جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ تھی، کچھ کر کے واپس جا چکے ہیں اور لیکن اب جو ہے وہ بر صغیر کی جو ہے وہ فلائٹس وغیرہ جو ہے وہ آ رہی ہیں اور پاکستانی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں بائی روڈ۔ کچھ افراد کو مشکلات تھیں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو گئی ہیں اور کافی الحمدللہ الحمدللہ۔ یہاں پر اتفاق سے آپ نے یاد دلایا تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ مومنین سے التماس کی جائے، زائرین جو ہمارے آس پاس ہیں ان سے بھی گزارش کی جائے کہ خصوصاً ان افراد کے ساتھ یہاں پر سفر جو آپ کرنا چاہیں گے لیکن ابھی تک وہ موجود نہیں ہیں، بارڈر ایریا میں موجود ہیں یا بہت سے اس مرتبہ کراچی اور کوئٹہ میں ہمارے احباب ویزا ٹائم پہ نہ ملنے کی وجہ سے پھنسے رہ گئے اور انشاءاللہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں بھی شامل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر مشکلات کو دور کرے اور ہمارے ساتھ اس سفر میں جلد از جلد شریک ہوں اور ہمارے ساتھ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مواقع موجود ہیں، مواقع موجود ہے بہت سے مواقع پر اس وقت چونکہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ مغرب کے قریب انشاءاللہ رات کا کھانا تقسیم کیا جائے گا اور ابھی چائے وغیرہ اور ہلکی پھلکی کوئی غذا جیسے کیک رس وغیرہ نہیں، عراقیوں کا ایک رواج بھی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ناشتہ کرتے ہیں اور دوپہر کی نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ دوپہر کا کھانا دیتے ہیں اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ جی بالکل عشاء کا وہ دیتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ انتظامات یہاں پر مواقع میں کیے گئے ہیں اور سب سے خصوصی تذکرے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ عراقی صرف یہاں مواقع میں موجود نہیں بلکہ پاکستانی بھی موجود ہیں، یہاں پر ہندوستانی احباب بھی مواقع لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی شاندار مواقع، ایسا نہیں ہے کہ عراقیوں کے جو مواقع ہیں وہاں پر بہترین غذا کا انتظام ہو اور بہترین سہولیات دی جا رہی ہوں، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے لوگ کیونکہ سفر کر کے آتے ہیں، انہیں دور سے آنا پڑتا ہے، ان کے لیے انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور بہترین سہولیات زائرین کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی پہلا سفر ہے آپ کا مشی کا؟ جی نہیں، ہم 2018 میں ہی آئے ہیں اور مولا کے کرم سے 2019 میں اور 2023 میں اور اب 2024 ماشاءاللہ چوتھی مشی ہے اور زیارت شاید اس سے بھی زیادہ کر چکے ہیں۔ زیارات ہم 2015 میں عمرہ اور زیارات کر چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں ہم پہ خاص کرم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر برس لے آئے اور یقیناً جو لوگ نہیں آ سکے ان کو بھی لے آئے۔ میں آپ سے فرق جاننا چاہوں گا کہ وہ زیارت کے جو آپ نے مشی کے علاوہ کی ہے، عام دنوں میں جو زیارت ہوتی ہے اور مشی میں جو فرق ہے واضح طور پر، وہ کیا آپ نے فیل کیا؟ اصل میں جو ہم نے 2015 میں زیارت کی ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ زیارت کرنے کا اپنا ہی ایک مقام ہے اور اپنا ہی ایک جو ہے پہلی زیارت تھی، جو پہلی زیارت تھی 2015 میں، اور جو مشی کا ہے یہ ایک اپنا مقام ہے کہ اس میں اتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ مولا کے معجزے ہیں جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ میں اپنے ایک اتنا یقین کے ساتھ اور اتنا ہر جگہ پہ رو رو کے بندہ خود آنسو نکل آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے لبیک یا حسین، اور اس کے علاوہ جو ہم نے اب خاص بات دیکھی ہے کہ 2019 اور 2023 کی نسبت
दुगना मेरे ख्याल में चौगुना रश ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पहले भी 10-12 सफ़र को आए थे, आप भी 10-12 सफ़र को सामरा गए हैं, काजमैन गए हैं, करबला गए हैं। यकीन करें आप पहले से मेरे ख्याल में 4 गुना से भी ज़्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के सीज़न में भी आप यहाँ पर तशरीफ लाए। 2020 में हम नहीं आ सके, कोरोना वायरस था, उसके बाद 21 मेरे वालिद साहब बीमार थे शदीद, नहीं आ सके। चले अल्लाह ताला आपको हर साल खुदा लेके आए। और आखिरी बात ये कहूँगा कि बॉर्डर एरिया में कुछ लोग हमारे मौजूद हैं और कुछ मुश्किलात उनको दरपेश है। इंशाल्लाह अपनी दुआ में उन्हें याद रखिएगा ताकि जल्द से जल्द हमारे साथ शरीक के सफ़र हो। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे साथ और ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात करते हुए उनके जज्बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है वो हमारे साथ ज़ायरीन भी मौजूद हैं और वक्तन फ़क्तन हम उनसे भी बात करते रहेंगे, इनकी दिल की बातें आप तक पहुँचाएँगे, आपके दिल की बातें भी इंशाल्लाह जो है वो हम बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में पहुँचाएँगे। हमारे साथ एक ज़ायर हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। सैयद सिद्दीक़ हुसैन मेरा नाम है और मैं मुज़फ़्फ़राबाद अज़ाकीवी से मेरा तलक है। तो पहली बार मैं मशी में आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि दुनिया जो है ना, मैं समझकर सिमट के यहाँ पे आ गई है। ये मौला का करम है, ये मौला का एहसान है इन मुसलमानों पे कि मौला ने जो कुर्बानी, अजीम कुर्बानी दी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उसके सदक़े से आज ये पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त प्यादा रवी और मशी के तौर पे इस वक्त माशाल्लाह। आप फरमा रहे हैं कि आपका पहला सफ़र है, तो आपके वो जज्बात जो कभी आप वहाँ पाकिस्तान बैठ के महसूस करते थे, काश मुझे भी मौका मिले तो मैं इस सफ़र में जाऊँ, क्या वो जो आपने देखा वो सब चीज़ महसूस की यहाँ पर? देखें भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में सऊदीया में रहा हूँ, मैंने बहुत उम्र किए, मैंने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा मकाम है। लेकिन वो जो जज्बात, जो कैफियत मेरी यहाँ पे आके महसूस हुई ना, वो वल्लाह मैं इसको बयान नहीं कर सकता। 60 साल से प्लस मेरी ज़िंदगी है। मैं कहता हूँ कि मैंने वो वक्त क्यों ज़ाया किया, पहले क्यों नहीं दिलाया। अल्लाह आप तबारक तआला आपके सफ़र को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे साथ जो है वो ज़ायरीन मौजूद हैं, वक्तन फ़क्तन जो है वो हम उनसे बात करते रहेंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जगहों से ज़ायरीन मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं अली हैदर हूँ और आरिफ वाला पंजाब से तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह। आप इस सफ़र में आ रहे हैं, आपका ये पहला सफ़र है या पहले भी? नहीं, पहले 2 दफ़ा कर चुका हूँ। मैं हौज़ा इल्मिया करबला मोहल्ला में तालिब इल्म हूँ, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। आप इस सफ़र को किस तरह से देख रहे हैं, आपके क्या एहसास हैं और ख़ास तौर पर अपने वो नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये सफ़र इश्क है। सफ़र इश्क में क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को, क्योंकि जो ये कैफियत है देखने वालों की, वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी फैमिली मेम्बर्स के क्योंकि मैसेजेस आते हैं, तो वो मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उस बयान करने। अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जो एक जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, और इंसान सिर्फ यही कहने पे मजबूर हो रहा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस कैफियत को बयान कर सकूँ। और मैं ये कैफियत जो है वो ये बयान करने से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये कैफियत देखने से ताल्लुक़ रखती है। इंसान ख़ुद अपनी आँखों से इस मंज़र को मुलाहिज़ा करे और फिर यकीनन इंसान देख कर, वो जो मंज़र देख कर हो सकता है, यकीनन उसको बयान करके भी वो कुछ बयान नहीं किया जा सकता जो हम भी आप नाज़रीन को दिखा रहे हैं और जो आप तक पेश कर रहे हैं और जो कुछ बयान कर रहे हैं। शायद हमारा बयान करना भी एक हद तक हो सकता है, एक कैफियत हो सकती है जो हम कुछ अल्फाज आप तक जो है वो पहुँचा रहे हैं, और यकीनन जो है वो इसका जो असल लुत्फ़ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि ख़ुद इंसान बज़ात ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लाए और इसको बयान करे। यकीनन ये खूबसूरत लम्हात, ये खूबसूरत वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही हम अपने नाज़रीन को भी अपने प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। और आप नाज़रीन से कहूँगा यकीनन आप तैयार रहिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी कॉल्स के ज़रिए आपको हम जो है इस प्रोग्राम में शामिल रखेंगे और आपकी गुफ्तगू और आपकी आवाज़ भी इस जगह जो है वो गूंजती रहेगी। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जी, तो नाज़रीन जिस तरह के आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि किस तरह हुजूम जो है वो करबला की जानिब गामज़न है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो है वो हुकूमत का एक मंज़र याद आ रहा है कि इमाम ज़माना की जब हुकूमत आएगी भी तो लोग इतने खुशहाल होंगे कि ज़कात देने के लिए, खुम्स देने के लिए लोगों को गरीब लोग नहीं मिलेंगे, गरीब मोमिन नहीं मिलेंगे। कोई शख्स उनके पास ज़कात या खुम्स लेकर जाएगा तो वो कहेगा कि हमारे पास है, आप किसी और को दे दें। यही मंज़र बिल्कुल इस वक्त
مشی میں نظر آتا ہے ہمیں کہ زائرین کو مواقف والے جو ہے وہ کھانا اور وہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زائرین اتنے پر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے شکم اتنے پر ہوئے ہوتے ہیں، پہلے ہی ان کی اتنی خدمت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ آگے کسی اور کو دے دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آیت اللہ تقی بہجت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے ظہور ہوگا تو وہ امام زمانہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، جس کو پیاسا مارا گیا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں یہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ زائرین موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جو ہے ان کے اظہار خیال جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، کیا نام ہے آپ کا؟ سید صدا حسین کاظمی۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ پاکستان، خیرپور میرٹھ سندھ۔ خیرپور سے ماشاءاللہ تعلق ہے۔ جی جی۔ تو پہلی دفعہ آ رہے ہیں یا نہیں پہلے بھی نہیں، آ چکے ہیں؟ 3-4 مرتبہ آئے ہیں ادھر تو الحمدللہ۔ آپ کو یعنی یہاں پر آ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کس طرح کی خدمت کی جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے ساری چیزیں؟ یہاں پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خدمت کر رہے ہیں امام حسین کے زائرین کی، تو کسی قوم سے، کسی مذہب سے یہ تعلق نہیں رکھتے، جتنے بھی بندے آتے ہیں ان کی امام حسین کی محبت میں یہ خدمت کرتے ہیں۔ رویہ آپ کو کیسا لگا یہاں کے مواقف والوں کا؟ آپ یہاں جو عراقی خدام ہیں جو خدمت کر رہے ہیں زائرین کی، یہاں کا جو رویہ ہے، جتنے بھی خدام ہیں زائرین کی خدمت کرنے والے ہیں، مطلب کہ ہم نے زندگی میں کہیں پہ بھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اتنی خدمت کریں، اپنے بچے، اپنے گھر، اپنی گاڑیاں، ہر چیز امام حسین کے نام پر قربان کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی زائرین کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو اس دفعہ نہیں آ سکے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم ان کے لیے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں، امام حسین کی زیارت کریں، اور جو نہیں آ سکتے کسی مشکل کی وجہ سے، امام حسین سے جا کے دعا کریں گے کہ امام حسین ان کی مشکلات حل کریں، اور انشاءاللہ اگلے سال 40 پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ امام حسین کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خدا آپ کی جو ہے وہ زیارات کو قبول فرمائے۔ جی تو ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک پاکستان سے زائر موجود تھے، ہمارے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ زائرین کا سلسلہ جڑنے کا جاری ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ جڑے رہیں، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ تمام کو دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور زائر موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا یہ سفر کیسا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت، مولا کے کرم۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ہم پاکستان سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور ادھر اچھا۔ نجف اشرف میں طالب علم۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یعنی یہ مشی کرتے ہوئے؟ ابھی ہمیں رات کو نکلے ہیں اور 1 دن ہونے والا ہے ابھی۔ اچھا، آپ کے کیا تاثرات ہیں یہاں کی خدمت کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہترین، اور تقریباً ہمیں ابھی 5ویں مشی مولا نے نصیب کی ہے، 5ویں اچھا، مرتبہ، اور جب بھی آئے ہیں ایک نئے مناظر دیکھنے کو پیش آئے ہیں، اور مولا کا یہ زندہ معجزہ ہے، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ پیغام دینا چاہیں گے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بس پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو امام کی قربانی تھی، اور امام نے جو اس دنیا کو، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو پیغام دیا، اس سے ہم مومنین کو، مسلمانوں کو اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا چاہیے اور امام کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خدا آپ کی زیارت جو ہے وہ قبول فرمائے۔ جی تو ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے ساتھ زائرین موجود تھے، وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے پیغام دیا کہ بھائی آئیں، جو مومنین نہیں آ سکتے ہیں یا جو نہیں آ رہے ہیں یا جن کی سکت ہے آنے کی، استطاعت ہے آنے کی، لیکن پھر بھی وہ کسی دنیاوی مشکلات کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ خدا جو ہے ان کی مشکلات کو دور کرے گا۔ مولانا ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔ جی، بہت ہی خوبصورت مناظر آپ کے سامنے، زائرین اپنے جذبات اور احساسات کا خوبصورتی سے اظہار کر رہے ہیں کہ وہ مناظر جو آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں، وہ باتیں جو آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، وہ شاید مبالغہ آرائی کے ساتھ پہنچاتی ہوں، لیکن یقیناً اگر ایک زائر خود اس مشی میں موجود ہو کر آپ تک اپنے جذبات اپنی زبانی پہنچا رہا ہے، اپنے احساسات کا اظہار خود کر رہا ہے، تو یقیناً یہ پہلا سبب ہے یا پہلا سورس ہے کسی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا، یا کسی کے بارے میں
मालूमात हासिल करने का, इसमें यकीनन कोई मुबालगा नहीं है। और मैं दावे से कहता हूँ कि आज तक आपने जितना कुछ मशी के बारे में सुना, आज तक आपने जितना ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है वो बहुत कम है। अगर आप ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हों, इस सफ़र मशी में, इस सफ़र इश्क में शरीक हों, तो जानेंगे कि वो यकीनन 50% से भी बहुत कम है। और यहाँ पर ख़ुद जब तक आप आकर एक मरतबा तजुर्बा हासिल नहीं करते हैं, अपनी आँखों से ये इश्क के मनाजिर नहीं देखते हैं, अपने कानों से ये जोश और जज्बे से गूंधी हुई आवाज़ें नहीं सुनते हैं, आप उसका हकीकी मारिफत और आशनाई हासिल नहीं कर सकते। यकीनन बहुत ज़्यादा तादाद जो कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुसलसल ज़िक्र भी किया जा रहा है, ताकि ये साथ साथ जिस तरह कदमों से इबादत अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह से अपने कानों के ज़रिए भी ज़िक्र कुरान, ज़िक्र अहले बैत के ज़रिए मुसलसल अपने कानों के ज़रिए भी इबादत किए जा रहे हैं। और यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यहाँ पर अभी अभी इस सफ़र का आगाज़ किया, इसलिए कि मौसम निस्बतन बेहतर हो चुका है, तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है और सूरज भी गुरूब होने को है। इंशाअल्लाह तकरीबन 1 घंटे से भी कम वक्त है कि सूरज गुरूब हो जाएगा। और इसी हैसियत से ज़ायरीन अपने अपने सफ़र को नमाज के औकात से मुरतब करते हुए जारी रखे हुए हैं कि थोड़ा बहुत सफ़र कर लेंगे तो नमाज के लिए किसी मौक़िब में जाकर रुकेंगे, वहाँ पर नमाज की अदायगी होगी और उसके फ़ौरन बाद मवाक़िब पर जो खाना रात के खाने के हवाले से तकसीम किया जा रहा होगा उसको खाएंगे, तनावुल फरमाएंगे और उसके बाद ये सफ़र एक मरतबा फिर शुरू हो जाएगा। मवाक़िब में आराम के लिए भी उनके लिए जगह मौजूद होंगी और हर तरह के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं, खाने के हवाले से, पीने के हवाले से, या आराम के हवाले से, या थकावट दूर करने के हवाले से। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि यकीनन इंसान सफ़र करते हुए उनको अपने बैग में डालना नहीं भूलता और मुसलसल परेशानी का शिकार रहता है कि कहीं कोई चीज़ मैं ऐसी भूल ना जाऊँ कि जो रास्ते में मुझे ज़रूरत हो, और मैं अगर रास्ते में मुझे वो याद आए तो परेशान खड़ा रहूं और मुझे वो वहाँ पर ना मिले या बहुत ही महंगे दामों मिले। लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मुक़द्दस सफ़र है कि इस सफ़र में अगर आप आते हैं और कुछ भूल भी जाते हैं तो भी वो आपको बग़ैर किसी इवज़ के आपको वो चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में इमाम के नाम पर इनायत कर दी जाती है। और इसमें आप पर कोई एहसान नहीं जताया जाता, बल्कि यूँ आपको एहसास दिलाया जाता है कि गोया आपने एहसान किया है कि इन खुद्दाम को आपने खिदमत का मौका दिया है। आप मुसलसल यहाँ पर ये मनाजिर देख रहे हैं, हमारे करीब ही एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है कि जो मुसलसल ज़ायरीन पर कि जो गर्मी में सफ़र कर रहे हैं उन ज़ायरीन पर ठंडे पानी से यहाँ पर प्रेशर वाला पानी डाल रहे हैं कि जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ही सही उन्हें ठंडक का एहसास होता है और चंद कदम ताज़ा दम होकर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं। यकीनन यही वजह है कि इन तमाम तर दाएँ बाएँ की मुश्किलात को दूर करके उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से सोचने पर मजबूर किया जाए, मौका फ़राहम किया जाए कि आप सिवाय हुसैन के कुछ ना सोचें। आपकी मंजिल अगर हुसैन है तो हुसैन से कम तर जो चीज़ है वो आपको आपके हदफ में रुकावट बनती नज़र आएगी। तो आप सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुसलसल सोचिए, बातें कीजिए, सुने तो हुसैन, बोलें तो हुसैन, सोचें तो हुसैन और चलें तो हुसैन की जानिब। और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि यकीनन जब वो शहीद राह खुदा हैं तो वो खुदा के यहाँ ज़िंदा भी हैं, रिज़्क़ भी पा रहे हैं और वो ऐसा शऊर भी रखते हैं कुरान की गवाही की रूह से कि जो हमारी समझ और फ़िक्र से बाला है। हम उसे समझ नहीं सकते, हम उसे सोच भी नहीं सकते। तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसी इनायत है उन ज़ुव्वार पर कि जो अब इस सफ़र इश्क में शरीक हैं। यकीनन मैं कहने में हक़ बजानिब हूँ कि जब भी आप किसी दावत पर तशरीफ़ ले जाते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसी दावत हुआ करती है कि जिसमें ख़ुद वो मेज़बान आपको बुलाता है, आपकी इज़्ज़त अफजाई होती है और फिर आप उसके पास उसके यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और आपके वहाँ पहुँचने से पहले तमाम तर इंतज़ामात के साथ वो आपका इस्तकबाल करता है। तो मुझे कहने दीजिए ना, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से आप बुलाए गए हैं, हाँ
61 सन हिजरी में जब बनी असद के लोगों को इमाम ने बुलाया है और उनसे उस ज़मीन का वो क़ता ख़रीदा है, तो उस वक्त उन्हें जो वसीयत फरमाई है उसमें एक सबसे जो अहम वसीयत थी वो यही कि देखो, अगर मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म को ज़मीन के सुपुर्द कर देने के बाद जब ये करबलाए मुअल्ला में तब्दील हो जाए, जब ये जंगल ऐसा शहर बन जाए कि जो ज़मीन में सबसे ज़्यादा आबाद जगह हो, तो देखना जो भी मेरे नाम पर चलता हुआ मेरी ज़ियारत के लिए आए और मेरी ज़ियारत के इश्तियाक में मेरा मेहमान बने, तो तुम उसकी 3 दिन तक मेज़बानी करना। तो यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से बिल्कुल मुत्तसिल कुछ रोज़ कबल आपके इन तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से इमाम अलैहिस्सलाम ने ये कार खैर किया है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यकीनन ये एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि हमारे खुशबख्ती है, हमारी एक सआदतमंदी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम मेहमान बने। हमारे साथ ज़ुबार मुसलसल मौजूद हैं, उनके ख़यालात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? भाई मैं कराची से तशरीफ़ लेके आया हूँ। जी, आपका पहला सफ़र है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारे सफ़रों में से एक सफ़र है। जी माशाअल्लाह। मौला की ज़वारी के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम जी, अलैल बिस्मिल्लाह। हुसैन व अली इब्नुल हुसैन व औलादुल हुसैन व अंसारुल हुसैन व अस्हाबुल हुसैन। जी, खुशकिस्मती आप कुछ रोज़ कबल यही जुमले इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम के बिल्कुल सामने पहुंचकर अदा कर रहे होंगे। तो कैसे एहसासात है, क्या जज्बात है कि आप मुसलसल हर साल या हर चंद साल के बाद यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं? हम तो वैसे हर साल ही मौला ने इज़्ज़त दिया है, जब से होश संभाला है, तो हम 2011-12 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अरबईन की ये सादत को खुदा अदा कबूल करने आ रहे फरमाए। हैं। और मौला से मांगा भी यही है कि मौला जब तक ज़िंदगी हो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अरबईन के रोज़ हमें करबला की हाज़िरी लिखवा दें, क्योंकि मेरी शहज़ादी है कौनैन बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का एक ही शिकवा था, एक ही फरियाद थी हमारे अज़ादारों से कि मेरे भाई का चेहलुम कोई ना कर पाया। और मैं ये चीज़ अपने दिल में इतनी रखा हुआ हूँ, ज़िंदगी भर मैंने मौला से सिर्फ यही मांगा है कि मौला जब तक ज़िंदगी है हमें मौला हुसैन का चेहलुम करबला में ही नसीब कराएं। चले, अल्लाह आपको हर साल ले आए। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे, उनके ज़ख्मों पर आप कैसे मरहम रखेंगे कि जो इस बरस हमारे साथ शरीक नहीं हो पाए, टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर ये मनाज़िर देखें? मैं उन सब से यही कहूँगा कि देखें, करबला कभी भी पैसों से नहीं आया जाता है। करबला सिर्फ और सिर्फ नियत से आया जाता है, इरादों से आया जाता सुभान अल्लाह, है। आप सुभान अल्लाह। अपनी नियत करें, आप अपना इरादा करें। इमाम हुसैन जामिन हैं बुलाने के। मौला अब्बास फहरिस्त तैयार करते हैं ज़वारों की। ये जितने ज़वार जा रहे हैं यहाँ पे मुस्तकिल चलते जा रहे हैं, ये सिर्फ इरादा बनाते हैं, नियत करते हैं और हम करबला में होते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, अल्लाह ताला आपको हर बरस लेके आए और आपकी ये मशी और ज़ियारत बामारिफत हो और तमाम तर अजर व सवाब के हकदार करार पाएँ। और तमाम जो मोमिनीन हैं हमारे जो सुन रहे हैं, यकीनन बहुत ही गहरा जुमला था कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लाह ताला आपके इन मुस्तकिल इरादों को इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाए और आपकी उन ख्वाबों की ताबीर जल्द आपको दिखाए कि जो आपने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से देखे हैं। बहुत ही हैरान कुन दुआएँ होती हैं कि जब हम मोमिनीन से कॉल पर या वैसे ही मालूमात हासिल करते हुए पूछते हैं कि बताइए इतने मुक़द्दस सफ़र में आपके लिए मांगें तो क्या कहते हैं, अगर कुछ मांग सकते हो तो बस यही मांगो कि खुदा हमें भी इस सफ़र इश्क का हिस्सा बनाए। इस बरस नहीं तो अगले बरस हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ बख्शे। जब कॉल करते हैं तो माएँ अपने बच्चों के बारे में कुछ मांगती नज़र नहीं आती, बल्कि पहला सवाल जो उनकी लब पे होता है वो यही कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हमें नसीब हो। और अगर कोई तकलीफ़ों और परेशानियों में घिरा भी है तो वो भी सिर्फ़ इसलिए यहाँ पर हमसे इल्तिमास से दुआ कहते हुए ये अर्ज़ करता है कि तकलीफ़ें दूर हों, ताकि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी, इमाम के ज़ियारत और मशी अरबईन के हवाले से वो अपने आप को आसूदा और तैयार और आमादा कर सके। अगर कोई माल व दौलत मांगता है तब भी वो इसलिए कि उस माल व दौलत के ज़रिए कार खैर करे, आखिरत के लिए तैयारी और यहाँ पर वसाइल इकट्ठे करे कि जिनके ज़रिए रोज़े जज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिफ़ात को हासिल करने वालों में से करार पाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह सदअज़मत पनाह में कि आप तमाम अहबाब की, तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों, तमाम इल्तिमास करने वालों, तमाम
कॉल्स करने वालों और बिलखुसूस तमाम तड़पने वाले दिलों की और रोती आंखों से जो फरियाद करते हैं और जिनकी आवाज़ शायद हम तक पहुंच भी नहीं पाती है, उनके हवाले से हम खुसूसी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमाए, ख़ुद मशी अरबईनिया में उनको शामिल फरमाए कि आप ही के तुफ़ैल और इन ज़ायरीन के तुफ़ैल ये अरबईन आलमी अरबईन करार पाया है। जी तो नाजरीन, जिस तरह के हम आपके साथ जो है वो मुसलसल राब्ता रखे हुए हैं हादी टीवी के तवस्सुत से, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको जो है वो मुसलसल लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आशिकों का काफ़िला बढ़ता चला जा रहा है। कमेंट्स में कुछ लोगों ने जो है वो दुआ का कहा है, हम उनके नाम लेकर जो है वो दुआ करेंगे इस रस्ते में। सैयदा फ़ाखरा हैं, इमरान बल्तिस्तानी हैं, जिन्होंने दुआ का कहा है कि मौला उनको भी जो है वो नसीब करे अगले बरस इंशाअल्लाह करबला आना। आरफिया तालपुर हैं कोई, उन्होंने जो है कमरुन्निसा अफरीन और अज़मीन के लिए दुआ का कहा है, खुदा जो है उनकी तमाम हाजात को जो है वो पूरा करे और जल्द से जल्द करबला में जो है वो ज़ियारत नसीब करे। अच्छा, और हमारे साथ जो है वो इक़्तिदार अली तूरी हैं, उन्होंने जो है वो दुआ का कहा है और सलाम का कहा है। हम उनकी नियाबत में मौला को सलाम कहते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन। मौला जल्द से जल्द जो है वो आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सना रिजवी हैं हमारे साथ, उन्होंने इल्तिमास से दुआ कहा है। नज़मा फ़ातिमा हैं, सखावत बाला हैं, हनीफ़ हैं। सैयद आसिम अब्बास ने लब्बैक या हुसैन कहा है, हम उनकी नियाबत में जो है वो लब्बैक या हुसैन इमाम को यहाँ से खड़े होकर तरीक़े करबला में सलाम पेश करते हैं। हनीफ़ अली हैं, अली रज़ा हैं, मुश्ताक अहमद है, जो लोग जो है वो मुसलसल हमसे जो है वो दुआ का कह रहे हैं, मुसलसल हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हम उनके लिए मशी कर रहे हैं, हम उनकी नियाबत में जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। हम पोल नंबर 153 पर मौजूद हैं, आपकी नियाबत में जो है वो ज़ियारत करते हुए चले जा रहे हैं। मौला को सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हुए हम कदम बढ़ा रहे हैं आपकी नियाबत में। हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के फ़र्ज की ताजील के लिए, उनके ज़ुहूर की ताजील के लिए, उनके ज़ुहूर में जल्दी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आप तमाम की नियाबत में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो बूढ़े बुज़ुर्ग जवान जो है वो चले जा रहे हैं। करबला में 72 की तादाद थी, जिनमें 6 माह के अली असगर से लेकर 70 साल के हबीब इब्न मज़ाहिर भी थे। नाज़रीन, तो यकीनन मुझे ऐसा लग रहा है कि हर उम्र के फ़र्द की जो है वो कोई 1-1 लाख जो है वो शबीहात इसमें जो है वो बन चुकी हैं और वो करबला की जानिब गामज़न हैं। हल मिन नासिर यंसुरना की सदा इमाम की जो गूंजी थी असर आशूर, उसको लब्बैक कहते हुए सहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाने के लिए करोड़ों का अदद इस वक्त जो है वो ज़ायरीन का बढ़े चला जा रहा है करबला की जानिब। और इनके चेहरों पर ज़रा भी थकावट नहीं है, इनके चेहरों पर जो है वो ज़रा भी परेशानी नहीं है। हर चीज़ की यहाँ पर फरवानी है, हर चीज़ जो है वो वक्त से पहले ही मिल जाती है। कोई ज़ाहिर किसी चीज़ के बारे में सोचता है और वो उस चीज़ के बारे में जो है वो चीज़ पा लेता है उसी टाइम। जी, तो मौलाना क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, यकीनन जैसे कि आप फरमा रहे थे कि एक खूबसूरत सिलसिला जारी व सारी है और नाजरीन का ये समंदर छलकता हुआ करबला की जानिब जा रहा है और बिल्कुल शाम का वक्त करीब है और सूरज गुरूब होने को है। और यकीनन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अगरचे जो है वो दिन में काफ़ी शिद्दत रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हवा भी चल रही है। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता जा रहा है, मौसम बनिस्बत जो है वो कुछ बेहतर होता जा रहा है। जो ज़ायरीन कुछ अपने मवाक़िब के अंदर जाकर इस आराम कर रहे थे, इस्तराहत कर रहे थे, गर्मी के बायस सफ़र नहीं कर रहे थे, वो भी अपने अपने मवाक़िब से निकल कर इस राह पर गामज़न हो गए हैं और वो भी सफ़र पर निकल रहे हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनके इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इंतहाई खूबसूरत सिलसिला जारी व सारी है। और मोमिनीन जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ उनको शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से जाहिदा बात कर रही हूँ मैं। लब्बैक या हुसैन। क्या कहना चाहेंगी आप? जहादा मासूमियत में दुरुस्त सलाम है, इमाम ज़माना की में दुरुस्त सलाम है, और लब्बैक है, उनको पुरसा भी है, और पूरा माशाल्लाह बहुत मशहूर होता है इमाम फज़ाइल के सारा देख के बस। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके सलाम को और आपके जो है वो इस सलाम को कबूल फरमाए, और आपकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, और आपको ये सआदत नसीब करे अल्लाह तबारक व तआला के आपको भी ये सआदत नसीब हो। आप अपने फैमिली बीवी बच्चों के जो हमरा जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस मुक़द्दस सफ़र में शामिल हो सकें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर अली बेग फ्रॉम पाकिस्तान से, हैदराबाद से। माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस सलाम कहना है के सामने सर। जहाँ हम इस वक्त तरीके करबला में मौजूद हैं, वो मुक़द्दस और रूहानी सफ़र जिसमें हर शख्स जो है वो जाने का मुतमन्नी। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको भी ये सफ़र नसीब करे, और आपकी तरफ से ये सलाम हम बारगाह इमाम में पहुँचाए देते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला आपके सलाम को और इस ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन ये खूबसूरत सिलसिला जारी व सारी है, और यकीनन जो है वो जो आज़ादार ज़ायरीन रवा दावा हैं इस काफ़िला इश्क में, इस सफ़र में चल रहे हैं, और मेहर मोहब्बत इश्क और जज्बे के साथ सफ़र जारी है। एक कॉलर मौजूद है, शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? से बात कर रहा हूँ, बस मैं आपकी काविशें देख रहा हूँ, आपकी मेहनत देख रहा हूँ, लाइव डेली में देखता रहता हूँ। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, सलामत रहें। क्या कहना चाहेंगे? आ नहीं सका हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द अज जल्द मौला को सलाम करने के लिए। जी ज़रूर, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हवाइजी शरिया को पूरा फरमाए, मुश्किलात को हल फरमाए। हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ये सआदत नसीब करे ताकि आप भी करबला के सफ़र में शामिल हो सकें इंशाअल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलसिला जारी व सारी है, और मोमिनीन बड़ी शिद्दत के साथ इस सफ़र में निकल रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनको शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, आपका सलाम बारगाह इमाम में हम पहुँचाए देते हैं, और यकीनन जो है वो बहुत से मोमिनीन जो है वो बारहा सलाम पेश कर रहे हैं बारगाह इमाम में। हम उनका सलाम बारगाह इमाम में पेश किए देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके सलाम को और उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कॉल्स का सिलसिला जारी सारी है। हम अपने मोमिनीन से गुजारिश करेंगे जो भी कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, अपने टीवी की आवाज़ या दूसरी जो आवाज़ है वो आप बंद कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल साफ़ हमें सुनाई दे। और इसके साथ साथ जो है वो गुजारिश ये है कि आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और आपकी कॉल को इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कश्मीर से एक मोमिन ने दुआ के लिए कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे भी ज़ियारत का ये सफ़र नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, उसे और उसकी फ़ैमिली के साथ उसे करबला का ये खूबसूरत और बाबरकत सफ़र नसीब करे। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन को ये सआदत नसीब करे कि वो तमाम मोमिनीन भी इस पाकीज़ा और रूहानी और मुक़द्दस सफ़र में शामिल हो सके, और अल्लाह तबारक व तआला सबको ये सआदत नसीब करे जो यहाँ आए हुए हैं उनकी ज़ियारत भी कबूल करे, और जो अपने अपने घरों में बैठे हैं और लाइव ये मंज़र देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके भी सफ़र को कबूल फरमाए। इसके अलावा मोमिना ने दुआ के लिए कहा है कि उनके बाबा बीमार हैं, उन्हें उनकी सेहत के लिए दुआ का कहा है। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उनकी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सर कॉलर मौजूद हैं, शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
से बात कर रहा हूँ जी क्या कहना चाहेंगे? देखा था लाइव में, मैंने कॉल की थी कि दुआ कहते हैं मौला हमारी दुआ कहते हैं हमारा भी सलाम कह रहे हैं। जी ज़रूर इंशाअल्लाह आपका सलाम बारगाह इमाम में पहुँचाए देते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जो तमाम नाजरीन देख रहे हैं उनकी तरफ से उनकी नियाबत में ये सलाम बारगाह इमाम में हम पहुँचा रहे हैं और साथ साथ उनकी दुआओं को भी हम जो है वो पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब हमारे साथ तशरीफ़ है? हाँ क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी दुआओं का सिलसिला जारी सारी है और यकीनन जी अस्सलाम जी जी एक मोमिन ने दुआ का कहा है, वो हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं और इंशाअल्लाह हम तमाम मोमिनीन के लिए और जिस मोमिन ने दुआ का कहा है अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इंशाअल्लाह दुआओं का ये सिलसिला जारी व सारी है और उनके सलाम को भी बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में हम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस सलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कौन साहब कहाँ से? जी सुन पा रहे हैं सर जी। जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है, पंजाब से बात कर रहे हैं। जी अपना के लिए सलाम करना था। जी जी ज़रूर सलाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आपका सलाम बारगाह इमाम में पहुंचाए देते हैं। यकीनन जो मोमिन दुआ का कह रहे हैं और सलाम का, हम इस सलाम को और दुआ को अपनी बारगाह में जो है वो बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में पहुंचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस दुआ को कबूल फरमाए और आपके इस सलाम को, आपके पुरसे को जहाँ जहाँ पर भी मोमिनीन जो है वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल कयूम सुमरो और मेरा बेटा है बीसम रजा, मेरा भाई अब्दुल शाहदापुर सिंध से बात कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हमारे लिए खुसूसी दुआ और ये भी दुआ रखें कि इंशाल्लाह आइंदा साल हमें भी अरबईन नसीब हो और हमारी वालदा की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ हो। मोहम्मद आले मोहम्मद जितने भी सफ़र में हैं उन सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपके और आपकी फैमिली की तरफ से जो है हम सलाम पहुँचाए देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और आइंदा साल अल्लाह आपको ये सआदत नसीब करे कि आइंदा साल आप भी करबला के इस मुक़द्दस में सफ़र में शामिल हो सकें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या? जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ शायद आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही। हम इनके सलाम को और इनकी दुआ को इंशाअल्लाह बारगाह इमाम में पहुंचाए देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस दुआ को कबूल फरमाए और इन्हें भी ये रूहानी सफ़र नसीब फरमाए कि आइंदा साल वो भी इस सफ़र में शामिल हो सकें और ये खूबसूरत मनाज़र अपनी आँखों से देख सकें इंशाअल्लाह ताला। कॉल्स का सिलसिला जारी सारी है और मोमिनीन बार बार
कॉल्स के ज़रिए सलाम पेश कर रहे हैं, अपनी दुआओं को बारगाह इमाम में पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अजर जज़ील अता फरमाए। यकीनन आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि किस कदर रूहानी और ख़ूबसूरत मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं। चूँकि सूरज गुरूब हो चुका है तकरीबन और नमाज मगरिब का वक्त करीब आन पहुँचा है और मोमिनीन जल्द अज जल्द पहुँचना चाह रहे हैं। जिस कदर सफ़र हो सके सफ़र करें और उसके बाद जो है वो नमाज का सिलसिला जारी रहे और इंशाअल्लाह नमाज के बाद फिर खाना और खाने के बाद फिर से अपना ये सफ़र जारी रख सके। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी माशाअल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम आपकी आवाज़ को सही से सुन नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह आपका सलाम बारगाह इमाम में पहुंचाए देते हैं और जी हाँ ज़रूर आपकी नियाबत में हम ज़ियारत भी कर रहे हैं, आपका सलाम भी बारगाह इमाम में पहुंचा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको भी ये सआदत नसीब करे कि आइंदा साल आप भी करबला के इस सफ़र में शामिल हो सकें। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। बेटी के औलाद के लिए दुआ करवानी है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बेटी को जो औलाद नरीना अता फरमाए और उन्हें वारिस नसीब करे और जल्द अज जल्द आप तमाम को करबला की ज़ियारत नसीब करे ताकि आप भी इस रूहानी और इश्क के सफ़र में शामिल हो सकें। दुआओं का सिलसिला जारी उसारी है। मोमिनीन बारहा इल्तिमास से दुआ का कह रहे हैं। इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उनके इस सफ़र को कबूल फरमाए। साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। हेलो जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हम हड़प्पा से बात कर रहे हैं। मौला की बारगाह में सलाम पेश करना है। मौला अगले साल हमें भी अरबाईन नशी करने की तौफीक दे। हम हड़प्पा से बात कर रहे हैं। जी हाँ ज़रूर, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल आपके इस सफ़र को करबला का ये सफ़र जो है वो आपको भी नसीब करे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जी हाँ अल्लाह तबारक व तआला आपके बीमारों को शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए और आपके इस रूहानी सफ़र में इंशाअल्लाह दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस रूहानी सफ़र को आपको ये नसीब करो। इंशाअल्लाह आइंदा साल आप भी ये ज़ियारत करें। इसके अलावा बहुत से मोमिनीन हैं जो बीमार हैं, उनकी शिफायाबी के लिए जो है वो इल्तिमास से दुआ का कहा गया है। परवरदिगार आलम उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे एक अंकल बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए और उनकी परेशानी और बीमारियों को दूर फरमाए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे? सलाम पेश करते हैं मौला, हमारा सलाम कीजिए मौला को। अगले साल जी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल आपको भी ये सआदत नसीब करे और अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन मोहब्बतों और अक़ीदतों का ये सफ़र जारी व सारी है और मोमिनीन की कसीर तादाद जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं इस सफ़र में जारी व सारी है और बहुत से मोमिनीन लाइव कॉल्स के ज़रिए हमें जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सलीम बात कर रहा हूँ, लाड़काना पाकिस्तान। माशाअल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? मौला की बारगाह में सलाम पेश करना चाहता हूँ और हमारे लिए दुआ कीजिए कि मौला हमें भी अपनी फैमिली के साथ अरबईन पे बुलाए। जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सफ़र को रूहानी सफ़र को जो है वो आइंदा साल आपको ये नसीब हो और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको ये सफ़र नसीब करे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके लिए दुआ गो हैं और इसके अलावा जो आप तमाम हाजात रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी हवाइज शरिया को पूरा फरमाए। यकीनन दुआओं का सिलसिला जारी सारी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन।
वालेकुम अस्सलाम। लबैक या हुसैन। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान से भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई को औलाद नरीना अता फरमाए और आप मौला सब अतादार को हमेशा सलामत रखे। या इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जनाब अली असगर के सदक़े में आपके भाई को औलाद नरीना और सालिह अता फरमाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपके लिए दुआ गो हैं और खूबसूरत सिलसिला जारी व सारी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, क्या आप सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम। हाँ जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? अलीपुर से हबीबा। जी क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं इमाम को सलाम करना चाहती हूँ। जी जी ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह आपका सलाम बारगाह इमाम में पहुंचाए देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपके इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका सलाम भी पहुंचाए देते हैं और सलाम के साथ साथ यकीनन जो है वो आपकी दुआएं भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जैसा कि यकीनन आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत मनाज़र दिखाई दे रहे हैं कि मोमिनीन जो चल रहे हैं उनके पाँव में जब छाले पड़ जाते हैं तो इनके बायस उनकी खिदमत करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और किस कदर दिल के साथ, किस कदर मेहर व मोहब्बत के साथ उनके पाँव में बैठ कर उनकी खिदमत कर रहे हैं। और कोई पाँव दबा रहा होता है, कोई छालों का इलाज कर रहा है। यकीनन ये मोहब्बत, ये इश्क और ये जोश जज्बा हमें कहाँ से मिलता है? ये जोश जज्बा हमें हुसैन इब्न अली से मिलता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दुआ बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी क्या कहना चाहेंगी? जी क्या कहना चाहेंगी? आपको आवाज आ रही है, क्या कहना चाहेंगी? मेरी हाजात पूरी होते हैं, उनके लिए दुआ करना और मेरी बहन के लिए दुआ करिएगा। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हवाइज शरिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात को हल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अगले साल आपको भी ये रूहानी सफ़र नसीब करे ताकि आप भी इस सफ़र में शामिल हो सकर पैदल नजफ़ से करबला पहुँचें और इस खूबसूरत सफ़र में और इश्क के इस सफ़र में शामिल हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआओं का सिलसिला जारी व सारी है। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। ये वक्त ख़ास करते हैं हम अपने उन नाज़रीन के लिए कि जो हमें दूर से बैठे देख रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ों को भी जो है वो करबला के और नजफ़ के इस सफ़र के अंदर आपकी आवाज़ें गूंज सके। इस मेहर मोहब्बत और जोश और जज्बे के साथ ये सिलसिला जारी व सारी है। यकीनन खूबसूरत मनाज़र आपकी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर रूहानी सफ़र है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम सलाम। लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। हमारे सबका सलाम। आप हमारे नियाबत की ज़ियारत कीजिएगा। जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपके सलाम को कबूल फरमाए और हम आपकी नियाबत में इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। हमारा कदम ब कदम उठा हुआ हम तमाम नाजरीन के लिए है। इंशाअल्लाह आपकी नियाबत में ज़ियारत भी की जाएगी और आपके लिए दुआ इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। यकीनन बारहा मोमिनीन जो है वो दुआ का कह रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ का सिलसिला जारी व सारी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पाकिस्तान। जी माशाअल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? जी बस हमारे और हमारे खानदान के लिए ज़ियारत के लिए दुआ करें जी, दुआ करें और हमारी तरफ से सलाम या हुसैन। जी इंशाअल्लाह आपका सलाम बारगाह इमाम में पहुंचाए देते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी तमाम फैमिली को ज़ियारत नसीब करे और इंशाअल्लाह आपका ये सफ़र जारी व सारी रहे। आप भी इस रूहानी सफ़र में शामिल हों और आइंदा ये 40 इंशाअल्लाह करबला में मनाएं।
दुआओं का सिलसिला जारी और सारी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो लोग भी बारहा कॉज के ज़रिए हमें दुआ का कहने, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके जो हाजात हैं दिल में रखते हैं परवरदिगार उनकी हाजात को पूरा फरमाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सिलसिला जारी और सारी है, आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है, मुख्तसर सा वक्त है, जिस कदर हो सके हम अपने कॉलर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। परवरदिगार आपके इस जो कार्य है इसमें आपको अल्लाह ताला बार के इमामत में कबूल फरमाए। मेरे भाई मैं बड़ा बीमार हूँ, मेरा नाम सैयद मोहसिन रज़ा शिराजी है। बार के इमामत में मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। ये सैयद मोहसिन साहिब हैं, बहुत बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने शिफाए कामिला वाजिला नसीब करे। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला इनकी बीमारी को कबूल फरमाए और बीमारी को जो है वो दूर फरमाए और इनकी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन बहुत बीमार हैं, इनके लिए और बाकी तमाम मोमिनीन जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आरिफ हुसैन। जी क्या कहना चाहेंगे? सर मोहब्बत हुसैन है, बस इश्क हुसैन है, नहीं जा पा रहे, गुनाहों की कमी है, क्या मसला है, नहीं जा पा रहे। दुआ करें कि बस मौला बुला लें, जल्द से जल्द बुला लें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल आपकी ज़िंदगी में करबला का ये सफ़र लिखे और आइंदा साल आप भी इस करबला के सफ़र में शामिल हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तमाम मोमिनीन की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसे कि नाज़रीन देख रहे हैं कि दुआओं का सिलसिला जारी और सारी था और हमने तमाम मोमिनीन के लिए जो है वो जिन्होंने भी कॉज की हमने उन्हें शामिल किया। चूँकि वक्त का नमाज का वक्त करीब है और हम चाहेंगे कि जो है यहाँ पर मोमिनीन कसीर तादाद में जा रहे हैं ताकि वक्त पर पहुँचे और बाजवात नमाज अदा कर सके और नमाज के सिलसिले को जारी रख सके और फिर आपके जो पैदल सफ़र करने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। हम तमाम मोमिनीन के लिए फिर से एक इज्तिमाई तौर पर ज़ियारत करते हैं और इज्तिमाई तौर पर ये जो हम चल रहे थे यकीनन अपने नाज़रीन की नियाबत में चल रहे थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये खूबसूरत सिलसिला और हमारे पैगामात भी नाज़रीन तक जो है वो पहुँचाए जाएंगे। यकीनन आप देख रहे हैं कि ये अरबईन हुसैनी के लिए, चेहलों में इमाम हुसैन के लिए एक खूबसूरत सफ़र है जो इन्हें खींचे चले जा रहा है और महरू मोहब्बत के साथ हैं। ये उस अरबईन को मनाने के लिए जा रहे हैं, उस चेहलों को मनाने के लिए जा रहे हैं कि जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आस थी। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब 11 मुहर्रम को काफ़िले लाए गए और चंद ऊँटों को बुलाया गया, चंद ऊँटों को लाया गया जिस पे महमल नहीं थे, बीबियों को कैद करके जब ले जाया जा रहा था, उस वक्त बीबी की ये आस थी कि जब आपको कैद करके ले जाया जा रहा था, सैयद सज्जाद मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, ए बेटा सज्जाद क्या तुम्हारा कुछ रह गया है? रोकर सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क्या मुझसे भी कोई गरीब बेटा होगा कि जिसका मुझसे कोई गरीब बेटा होगा जिसका बाप तपती रेत में पड़ा हो, उसका जवान बेटा मौजूद हो लेकिन उसे दफन करने की इजाज़त न हो, उसे कफन देने की इजाज़त न हो, क्या मुझसे भी कोई गरीब हो सकता है? यकीनन वो वक्त है कि जब बीबी हाथों में हथकड़ियाँ पहने और पाँव में बेड़ियाँ थीं। क्या वो मंजर था? बीबी जा तो रही थी अपने भाई के लाशे से और रोती हुई यही कह रही थी, हाँ दुनिया को तो दस्तूर होता है कि जब भी कोई किसी का मर जाता है हर कोई चला जाता है, नहीं जाती तो बहन नहीं जाती। हाँ देखिए दिल तो ज़ैनब कुबरा का भी था कि मैं अपने भाई का चेहलो मनाऊं, मैं अपने भाई को जी भर के गिरिया करूं, लेकिन भाई क्या करूं, मुसलमान रस्सियां लेके आ गए, मुसलमानों ने रोने की इजाज़त न दी, मुसलमानों ने लाशे पर बैठने की इजाज़त न दी, मुसलमानों ने लाशे को दफनाने की इजाज़त न दी। तेरी बहन बड़ी मजबूर है कि कैद हो के शाम में जा रही है। हम मौला की बीबी की ये हसरत थी, काश मैं अपने भाई के चेहलों को मनाती और जी भर कर गिरिया करती। बीबी आइए आपको उस
उस वक्त ये गिरिया कर रही थी, लेकिन आइए इस मंजर को देखिए, ये मंजर उस शाकुल हुसैन, हुसैन से इश्क करने वाले, हुसैन से मोहब्बत करने वाले आए हैं हुसैन के चेहलम को मनाने के लिए। अभी भी आपको शायद चेहलम न मनाने दिया गया, लेकिन आए हैं आपके भाई हुसैन को पुरसा देने के लिए। ये आए हैं हुसैन इब्ने अली के चाहने वाले, हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करने वाले। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज जो है हमारे पास जितना वक्त था हमने आपको स्क्रीन पर ये मनाज़र दिखाए और आपकी दुआओं का सिलसिला भी जारी और सारी रहा इंशाअल्लाह। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आइंदा साल में। तब तक के लिए जो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।